Hi students, this is yet another video in the video series of economics with a new unit. But before we start our lecture, there are 2 or 3 things that we should also address. First of all, this online pattern of study is new to all of you. So what we can do so that we are being benefited by the study pattern most. First of all, the college administration has provided you with 2 types of material. There is first the handwritten notes by the lecturers and the second are the videos. Now the handwritten notes that we have prepared are specially being made keeping in our head that the students will have to study the material by their own. So the language is very easy, the patterns are very easy, you go through the note, the study material, then you have to go to the video, and then if also after both the study material that you have gone through is still there are certain problems, the college has provided you with a WhatsApp number, so you can put your queries there so the teachers can further solve it. So this is one thing. Now, the unit that we are starting here is Money and Banking. You already have your syllabus uploaded on the college website of economics. There you already know that the syllabus of economics is being divided into 2 categories. First is microeconomics and the second one is macroeconomics. The unit that I am providing you the video of is from Macroeconomics Unit 3. The name of the unit is Money and Banking and the marks which are being allotted to this unit is 8. So, unit है आपका Money and Banking जो कि Macroeconomics में आता है और इस unit से जो आपको questions आएंगे examination में वो maximum 8 marks के questions हो सकते हैं. Before we start with our unit, there is one thing. जब आपने 11th में economics पढ़ा, when you were studying economics in your 11th standard, the division was like Indian economics and statistics. We had Indian economy and statistics. Now जब आप 12th में economics पढ़ते हो, the division is like microeconomics and macroeconomics. माइक्रो और मैक्रो का जो फंडामेंटल डिफरेंस है, जो कंसेप्ट का डिफरेंस है, वो आपको यूनिट 1 में ऑलरेडी बताया गया है. सो मैं एक बार क्विक उसको रिवाइज कराती हूँ आपको. द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एनी माइक्रो यूनिट और ए मैक्रो यूनिट इज माइक्रो में आप यूनिट लेवल पे पढ़ते हो, मैक्रो में आप टोटल यानी कि एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हो. दैट्स द फंडामेंटल डिफरेंस. नाउ विल कम स्ट्रेट टू आवर यूनिट मनी एंड बैंकिंग. मनी एंड बैंकिंग में सबसे पहले विल अंडरस्टैंड कि इस यूनिट को हमने कैसे स्ट्रक्चर किया है, हमें इस यूनिट को कैसे पढ़ना है. 3 पार्ट में इस यूनिट को ब्रेक डाउन किया जाएगा. द फर्स्ट पार्ट विल बी योर मनी, द सेकेंड पार्ट विल बी द थियरीज दैट विल बी स्टडीइंग इन दिस यूनिट एंड द थर्ड पार्ट विल बी बैंकिंग. सो दीज आर द 3 मेजर ब्रेक डाउन्स ऑफ द यूनिट. नाउ ईच सब हेडिंग के अंदर आपको डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं. जैसे कि स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सब हेडिंग दैट इज योर मनी. द फर्स्ट थिंग दैट यू विल बी स्टडीइंग इज व्हाट इज मनी. मनी क्या है, इसको समझने के बाद हमें ये जानना है कि मनी से पहले क्या था. एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट यू स्टडी बार्टर इकोनॉमी. बार्टर इकोनॉमी में आपने क्या क्या पढ़ना है, फीचर्स एंड डिफिकल्टीज. So what is money? Before money, what we had is barter economy. Barter economy में what you have to study is the features of barter economy plus the difficulties of barter economy. Then after, we'll have to study types of money. After that, evolution of money. एवोल्यूशन का मतलब होता है समय के साथ जो प्रोग्रेसिव चेंज आते हैं किसी चीज में, उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं. जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, कैसे हम मंकी से फिर इवेंचुअली ह्यूमन बीइंग में इवॉल्व किए. सो टाइम के साथ जो हमारा प्रोग्रेसिव चेंज है दैट इज एवोल्यूशन. अब इस प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ टाइम को हमें किसके कंसेप्ट में पढ़ना है, मनी के कंसेप्ट में. आफ्टर एवोल्यूशन ऑफ मनी we'll study what serves as a good money. Money can be anything, but what will be a good money? ये हमारा next topic होगा. After that, we'll study importance of money regarding consumption, production, and distribution. And last topic under this subtopic will be your functions of money. So a quick revision will have what is money, barter economy, types of money, evolution of money,
what serves as a good money, importance of money, functions of money. Now coming to the theory part of the unit, we have two concepts. The first theory is demand for money. This is your first theory that you have to study in this unit. And the second theory is the concept of money supply. So these are the two theories. Coming to the third breakdown of the unit, we have banking. Banking में first of all, the first topic that we'll be studying is banks, like in general, what is a bank? Then we'll have commercial banks. Commercial banks के बाद we'll have types of commercial banks, functions of commercial banks. So we'll be starting with a very fundamental question of what is a bank. Then we'll study particularly one type of bank, that is a commercial bank. Then we'll study different types of commercial bank. Then we'll study functions of commercial bank and balance sheet of any commercial bank. This is the part A of your banking portion. Coming to the part B of the banking portion, we'll have central bank. Now, as most of you will know, the Central Bank of India is Reserve Bank of India. Any country for that matter has only one central bank. And for India, the name of our central bank is the Reserve Bank of India. Then we'll have a basic introduction of the Reserve Bank of India. We'll have the structure of the central bank. We'll have functions. And out of many functions that the central bank performs, there is one function that you have to study in detail, is the function of credit creation by the function of credit control by the Reserve Bank of India. So summing up, this is the whole breakdown of your unit. Your unit is in three parts: money, theory and banking. Your money part will handle these units, these topics. Your theory part will cover these two theories, and your banking part is going to cover all these points. This is also being provided and written in the notes that is being uploaded by the college, so you can go there and you can write it down or whatever. Now starting with the first topic, that is what is money. जब हम इस यूनिट को पढ़ते हैं तो मनी एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए एलियन नहीं है. फ्रॉम अ 5 year old टू 50 year old, 5 साल से लेकर 50 साल तक के सभी लोगों को पता है कि मनी जैसा कुछ होता है. So what is the difference between the money that we use in our day-to-day life and the money that we are studying here? There is a fundamental difference which I'll try to show you like this. पहले आप इस चीज को समझिएगा, कंसेप्ट को, कि मनी का कंसेप्ट क्या है. देन विल फॉलो ऑन दी डेफिनेशन कि हमें इसे डिफाइन कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कीजिए दो लोग हैं, ए और बी. ए और बी के बीच में फ्लो हो रहा है. देयर इज अ फ्लो दैट इज हैपनिंग एंड द फ्लो इज ऑफ एनी गुड और एनी सर्विस. किसी भी गुड या किसी सर्विस का फ्लो हो रहा है किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में. सपोजनली बी ने ए को प्रोवाइड कराया कोई एक गुड, और इस गुड के बदले में ए को बी को पे करना है या रिटर्न करना है. अब ये जो ए बी को पे करेगा, इसका वट एवर मीडियम जो होगा जिसके थ्रू ए बी को पे कर रहा है, इस मीडियम को हम कहते हैं मनी. कैसे समझना है हमें? दो लोग हैं, ए और बी. ए और बी के बीच में देयर इज अ फ्लो दैट इज हैपनिंग. द फ्लो कैन बी ऑफ एनी गुड और अ सर्विस. बी ए को गुड प्रोवाइड करा रहा है, ए बी को पे करना चाहेगा. इस पेमेंट के लिए उसे कोई मीडियम की जरूरत होगी, जो मीडियम हमारा क्या हो जाएगा, मनी. सो दिस वेरी मीडियम इज व्हाट वी स्टडी एज मनी. ये हो गया हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं. अब आपके मन में आएगा कि ठीक है, फिर जो मनी आप यूज करते हो, बीट अ 5 rupee कॉइन, बीट अ 10 rupee नोट, बीट अ 5000 rupee चेक और वट एवर, बीट योर ATM कार्ड्स और वट एवर, जो मनी आप डे टू डे लाइफ में सभी यूज कर रहे हो ऑन अ रेगुलर बेसिस, उस मनी में और इस मनी में क्या फर्क है? देयर इज नो डिफरेंस एज सच. बट क्या है, जो मनी आप यूज कर रहे हो वो इसके टाइप्स हैं. जो आपको पता है कि कुछ 10 रुपए के नोट जैसा कुछ होता है, 5 रुपए के सिक्के जैसा कुछ होता है, ATM कार्ड जैसा कुछ होता है, आप चेक लेके बैंक के पास जाते हो और पैसे मिल जाते हैं आपको. ये सारी जो चीजें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हो, दैट इज टाइप्स ऑफ मनी.
वो मनी है और मनी के टाइप्स हैं। वो काम क्या करा रहे हैं, चाहे आप 5 रुपए के सिक्के की बात करें, 1000 रुपए के नोट की बात करें, 500 रुपए के चेक की बात करें, अपने एटीएम कार्ड की बात करें, सबके साथ आप क्या करते हो, एक्सचेंज का काम करते हो, किसी को पे करते हो आप। सो इस पेमेंट में जो मीडियम है, इस मीडियम को हम मनी कहते हैं, और इस मीडियम में जो आपने डे टू डे लाइफ में चीजें यूज करी है वो हमारा क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ मनी। सो ब्रेकिंग इट डाउन, मनी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 3 कीवर्ड्स होंगे हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ मीडियम। किस चीज का मीडियम होगा ये, एक्सचेंज का। ये मीडियम है किस चीज का, एक्सचेंज का। इसमें एक और एलिमेंट हमें ऐड करना होगा, जो कैसा मीडियम है, कॉमनली एक्सेप्टेड। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस, अगर हम इन वर्ड्स को साथ करके एक सेंटेंस बनाते हैं, हाउ वी कैन मेक अ डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दिस विल बी द ऑर्डर। इस ऑर्डर को फॉर्म करके हम मनी को डिफाइन कर सकते हैं। ये एक कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम है एक्सचेंज का। आपको मीडियम क्या है पता चल चुका है यहाँ से। एक्सचेंज किस चीज को कहते हैं, ए और बी के बीच का जो फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विस का, वो एक्सचेंज है। नाउ व्हाट डू वी मीन एंड व्हाई डू वी स्पेशली फोकस ऑन द कॉमनली एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ इट। देखिए, अगर आप किसी भी चीज को मीडियम के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि वो मीडियम ऐसा हो कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे। आप किसी के पास जाते हो, किसी शॉप में जाते हो और वो कहता है कि आपके पैसे को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपके पास मनी है व्हाटएवर टाइप का, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, कैश हो सकता है, 100 रुपए का नोट हो सकता है, चेक हो सकता है, एटीएम कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर सामने वाला रिफ्यूज कर दे कि नहीं मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है, तो क्या आप वहां पे अपना एक्सचेंज कर पाएंगे? आप वहां पे अपना एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो मनी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, सिर्फ उसके हो जाने से एक्सचेंज नहीं होता है। व्हाट यू हैव टू फोकस इज दैट मीडियम मस्ट बी कॉमनली एक्सेप्टेड। अब जब आप नोट्स को देखिएगा जो मैंने अपलोड किया है कॉलेज के साइट पे, उसमें मनी का जो फंडामेंटल डेफिनेशन है दैट गोज लाइक मनी इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये हो गया बेसिक डेफिनेशन। अब मनी से पहले हमारे पास किस तरह का पैटर्न था, किस तरह का सेटअप था, इसको समझने के लिए हमें किस चीज को पढ़ना होगा, बार्टर इकोनॉमी। The next point that you have to understand is what is a barter economy. बार्टर इकोनॉमी को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज हमें ध्यान में रखनी है, टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है हमारे सोसाइटी का पैटर्न चेंज होता है। व्हाट डू वी मीन बाय दिस कि सोसाइटी का पैटर्न चेंज होता है? एक सोसाइटी में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट है ह्यूमन सिविलाइजेशन, सेकेंड एलिमेंट है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन जो आपकी मानव सभ्यता है वो जैसे जैसे विकास की तरफ बढ़ती है, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो डोमेन है, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो भी धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है। सो टाइम के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा ह्यूमन रेस डेवलप करता है, और ह्यूमन रेस के डेवलप करने के साथ साथ हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो भी नंबर्स में बढ़ जाते हैं, टाइप्स में बढ़ जाते हैं, डिफिकल्टीज में बढ़ जाते हैं। अब अगर आज से 5000 साल पहले जो चीजें हमारे लिए काम कर रही थी, जरूरी नहीं है कि वही चीजें आज के डे एंड एज में भी हमारे लिए इफेक्टिव हो। सो टाइम के साथ हम सोसाइटी का डिविजन कर सकते हैं। वी हैव अ डिविजन ऑफ सोसाइटी। व्हाट इज दैट? We can divide the society in 2 types. First one is agrarian and second one is modern.
अब पहले आप इसको एक फंडामेंटल कंसेप्ट को समझेंगे कि अग्रेरियन क्या है और मॉडर्न क्या है। अग्रेरियन का मतलब होता है एक ऐसा सोसाइटी जो कि बहुत ज्यादा डोमिनेंटली डिपेंडेंट हो किस चीज पे, एग्रीकल्चर पे। एक ऐसा सोसाइटी जो किस चीज पे डिपेंडेंट होगा, एग्रीकल्चर पे। लेकिन सिर्फ डिपेंडेंट ही नहीं होगा एग्रीकल्चर पे, यहाँ का जो एग्रीकल्चर होता है वो होता है नॉन कमर्शियल। नॉन कमर्शियल कहने का क्या मतलब है, वहां पे लोग जो खेती कर रहे हैं उस खेती का मुख्य उद्देश्य होता है अपने जीवन को चलाना। उस खेती का मुख्य उद्देश्य उस खेती के उपज को बेचना या उससे प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ सोसाइटी, अग्रेरियन सोसाइटी इज अ सोसाइटी विच इज प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर बेस्ड, और एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटी यहाँ की जा रही है वो किस तरह की एक्टिविटी होती है, नॉन कमर्शियल। अब जब हम मॉडर्न सोसाइटी पे आते हैं, मॉडर्न सोसाइटी हमारा नॉन अग्रेरियन होता है। नॉन अग्रेरियन प्लस प्रीडोमिनेंटली मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड होता है। मॉडर्न सोसाइटी में हम नॉन अग्रेरियन सोसाइटी की बात करते हैं। अब जैसे ही नॉन अग्रेरियन हो गया, मतलब इस सोसाइटी में जो चीजें हो रही थी वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेंगे कहने का क्या मतलब है कि क्या मॉडर्न सोसाइटी में एग्रीकल्चर नहीं किया जाएगा? नहीं, एग्रीकल्चर के बिना हम सस्टेन ही नहीं कर सकते। तो चाहे कोई भी सोसाइटी हो, एग्रीकल्चर इज द फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट हैज टू हैपन। बट उस एग्रीकल्चर का हम यूज कैसे कर रहे हैं, क्या वो हमारा नॉन कमर्शियल होगा? नहीं, यहाँ पे जब हम एग्रीकल्चर का यूज करेंगे वो कैसा हो जाता है, कमर्शियल हो जाता है। अब कमर्शियल जैसे ही हमारी एक्टिविटी हो जाएगी उसमें एक एलिमेंट ऐड हो जाता है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। सपोज कीजिए अग्रेरियन सोसाइटी है, लोगों ने वीट का कल्टीवेशन किया, गेहूं है लोगों के पास, लोग गेहूं को आटा बनाएंगे, रोटी खाएंगे, खत्म। इसके आगे वहां पे कोई प्रोसेस आपको परफॉर्म करता हुआ नहीं मिलता है। नाउ वी कम टू मॉडर्न सोसाइटी। पीपल आर कल्टिवेटिंग वीट, हमारे पास वीट आया, हमारे पास आटा आया। हम ऐसा नहीं कि सब आटा अपने अपने घरों में रोटी बना के हम उसे खत्म कर देंगे, वी वोंट डू दैट। व्हाट वील डू इज, हम जो वीट की कल्टिवेशन कर रहे हैं उसको हम सरप्लस कल्टिवेशन करेंगे। सरप्लस कहने का मतलब है अगर हमें जरूरत है अपनी रोटी के लिए 5 kg वीट की, तो हम सिर्फ 5 kg वीट नहीं उगाएंगे। सपोजिंगली हमने 10 kg कल्टिवेशन किया, अब इस 5 kg सरप्लस वीट को हम आटा के बाद सिर्फ आटा नहीं बनाएंगे, वी कैन मेक अ बिस्किट आउट ऑफ इट, वी कैन मेक अ ब्रेड आउट ऑफ इट, और वी कैन मेक एनी XYZ गुड विच कैन बी मेड आउट ऑफ वीट। तो अब हमारा जो मोटिव है वो कैसा हो गया, कमर्शियल। जैसे ही हमारा मोटिव कमर्शियल हुआ, हमने क्या करना शुरू कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग। सो कमिंग बैक टू हियर, टाइम के साथ ह्यूमन रेस एडवांस होता है, ह्यूमन रेस के एडवांसमेंट के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एडवांस हो जाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एडवांसमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए हम टाइम बेस्ड सोसाइटी का डिविजन करते हैं। टाइम बेस्ड सोसाइटी का डिविजन 2 तरह से हो सकता है, अग्रेरियन सोसाइटी एंड मॉडर्न सोसाइटी। Agrarian society is predominantly agriculture based and the agriculture is non-commercial. Modern society is non-agrarian, जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है लेकिन कमर्शियल एग्रीकल्चर किया जाता है। और उस कमर्शियल एग्रीकल्चर का मतलब आपने क्या समझना है कि एग्रीकल्चर को फर्दर किस चीज में यूज किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ आटा से रोटी बना के लोग अपना जीवन व्यापन कर रहे होते हैं, यहाँ आटा से ब्रेड बना के लोग उसे मार्केट में सेल कर रहे होते हैं। अब जब हमारे पास अग्रेरियन सोसाइटी थी, जब हम बहुत ही प्रिमिटिव थे, प्रिमिटिव कहने का मतलब है बहुत समय पहले की ये बात है, तो हमारा पॉपुलेशन कम था, हमारी आवश्यकताएं कम थी, हमारे पास एक्सचेंज का जो ऑप्शन है वो कम था। मतलब बार्टर इकोनॉमी जिस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा था, वी हैड अ लेसर पॉपुलेशन, वी हैड लेसर नीड्स
and resultantly we had lesser possibility of exchange. ये तीनों चीजें हमारे पास क्या थी पुराने समय में, कम थी। पॉपुलेशन कम था, नीड्स कम थे, एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी कम थी। इस समय में लोग क्या करते थे, अगर किसी एक के पास गुड ए है और बी के पास गुड बी है, तो लोग क्या करते थे इस वक्त, ये अपना सामान इसे दे देता था और ये अपने सामान का थोड़ा पोर्शन इसके साथ शेयर कर लेता था। अब ए के पास पहले गुड ए था, अब गुड ए प्लस बी हो गया। बी के पास पहले गुड बी था, अब गुड बी प्लस ए हो गया। और ये सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होता था, दिस वॉज अ सीरीज, ये एक चेन था जो मल्टीपल, बी का सी के साथ होता, सी का डी के साथ होता, डी का ए के साथ होता। तो एक छोटी सोसाइटी में जहाँ पे पॉपुलेशन कम था, जरूरतें कम थी, सामान कम थे हमारे पास, इस तरह के चेन के साथ अपने लाइफ को सस्टेन करना हमारे लिए पॉसिबल था। सो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे एक दूसरे के साथ चीजों को एक्सचेंज करने के लिए किसी अन्य तीसरे माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, अ सोसाइटी और एन इकोनॉमी वेयर गुड्स were exchanged for goods. This kind of an economy was called as barter economy. एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे एक गुड के बदले में दूसरे गुड को हम एक्सचेंज करते थे, बीच में कोई थर्ड मीडियम नहीं आया, उसको हम कहते थे बार्टर इकोनॉमी। अब बार्टर इकोनॉमी में मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हमें दो पार्ट्स में पढ़ना है इसको। एक पार्ट होगा फीचर्स और दूसरा पार्ट होगा हमारा डिफिकल्टीज। तो विल कम फॉर द फर्स्ट पार्ट। फीचर्स का मतलब होता है उसकी विशेषताएं या उसमें क्या गुण थे अवगुण थे, दोनों को हम फीचर्स में पुट कर सकते हैं। बार्टर में सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे बार्टर को। व्हाट इज अ बार्टर इकोनॉमी? एन इकोनॉमी इन विच गुड्स वेयर एक्सचेंज फॉर गुड्स इज कॉल्ड अ बार्टर इकोनॉमी। बार्टर इकोनॉमी कब की बात है? ये अग्रेरियन सोसाइटी में पाया जाता था, बहुत पहले की बात है। कितना पहले? जब हम कहते हैं कि ये बहुत आदिकाल की बात है, सो वी हैव टू प्रोवाइड अ टाइम फ्रेम कि कितनी पुरानी बात है ये। तो बार्टर इकोनॉमी जो हमें मिलती है वो कब मिलती है? 6000 BC, 6000 साल बिफोर क्राइस्ट। ये है इसका टाइम फ्रेम। अब जिस समय की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उस समय में आपको एक और चीज ध्यान में रखना होगा कि हमारी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती थी। जैसे अगर 2020 में कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज योर आइडेंटिटी, तो यू कॉल इट एज यू आर एन इंडियन और यू आर एन अमेरिकन और व्हाटएवर, तो आपके देश के साथ आपको जाना जाता है। अगर आप भारत के अंदर रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो डिफरेंट स्टेट्स आपकी सेकेंडरी आइडेंटिटी होती है कि आई एम एन इंडियन बट आई एम फ्रॉम यूपी और आई एम फ्रॉम बिहार और आई एम फ्रॉम झारखंड। सो आज 2020 में हमारी सोसाइटी या हमारी सिविलाइजेशन अपनी आइडेंटिटी कहाँ से लेती है? नेशन से लेती है। लेकिन 6000 BC में लोगों की जो आइडेंटिटी होती थी वो कहाँ से हमें मिलती थी? ट्राइब्स। लोगों का एक मुख्य समूह जो एक साथ उठता बैठता रहता खाता पीता था, एक तरह के जीवन पद्धति को फॉलो करता था, एक तरह के नियम और कानून को फॉलो करता था आपसी सहमति से, उनको हम ट्राइब्स कहते हैं। अब इस समय में जहाँ पे लोगों की पहचान उनके ट्राइब से होती थी, बार्टर इकोनॉमी हमें किस ट्राइब में मिलता है? मेसोपोटामियन ट्राइब। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है वो है व्हाट इज बार्टर इकोनॉमी, जहाँ पे गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जाता है। सेकंड पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है वो उसका टाइम फ्रेम है, कब पाया जाता है और कहाँ किसके साथ पाया गया। सो इट वाज फाउंड इन 6000 BC विद मेसोपोटामियन ट्राइब। नाउ थर्ड पॉइंट इज कि जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था
तब हम बार्टर सिस्टम को यूज करते थे। जब मनी हमारे पास कंसेप्ट मनी का नहीं आया था, मतलब मनी का कंसेप्ट आया, इसमें कुछ दिक्कतें हुई होंगी तभी। जब हमारे पास जो चीजें हैं उनमें कुछ ना कुछ हमें दिक्कतें मिलती हैं, फिर हम नई चीजों के खोज में या नई चीजों के लिए प्रयासरत होते हैं। When we fundamentally find that whatever we are having already is not sufficient enough to serve the purpose of our life, then we kind of go for endeavoring the new things. हम नई चीजों के endeavor में उसके बाद जाते हैं। तो बार्टर के फीचर्स, ये 3 मेन फीचर्स हो गए। क्या था, कब था, मनी से पहले था। अब मनी से पहले था और इसके बाद मनी आ गया, इस दो चीजों के बीच में आपने क्या पढ़ना है, बार्टर की डिफिकल्टीज, कि क्या क्या ऐसी डिफिकल्टीज हुई जिसके कारण हम बार्टर इकोनॉमी से मॉडर्न मनी इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म किए। फीचर्स को समराइज करेंगे हम कैसे। गुड विद गुड का वहां पे सिस्टम था, सामान को सामान से एक्सचेंज किया जाता था, मींस नो मीडियम। टाइम फ्रेम बताएंगे, ट्राइब बताएंगे, और बार्टर सिस्टम में कुछ ऐसी डिफिकल्टीज थी जिसके कारण आगे चल के हमें किसके यूज के तरफ फोकस करना पड़ा, मनी के यूज को। अब जब हम बताते हैं कि डिफिकल्टीज थी, तो सिर्फ कह देने से आप कंप्लीटली एक सिस्टम को आउटराइट कर रहे हो कि एक सिस्टम है जिसमें कुछ ऐसे फ्लॉज थे जिनके कारण ह्यूमन सिविलाइजेशन उस सिस्टम के साथ नहीं टिका। तो आपने उस डिफिकल्टीज को भी क्या करना होगा, यू हैव टू स्टडी द डिफिकल्टीज। इसको आप अपने नोट्स में देख लीजिएगा, फीचर्स वहां पे बार्टर इकोनॉमी का लिखा हुआ है। नाउ कमिंग टू द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर इकोनॉमी। डिफिकल्टीज में देखिए क्या क्या दिक्कतें थी। सबसे पहली डिफिकल्टी हमारी क्या थी, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब होता है आपको जो चाहिए, आप जिस चीज को ढूंढ रहे हो आपको वही चीज मिल जाए, और यहाँ पे संयोग, जिस संयोग की हम बात कर रहे हैं वो हमें सिर्फ एक बार जरूरी नहीं हो रहा, वो हमें कितनी बार चाहिए, डबल कोइंसिडेंस। इसको कैसे समझेंगे आप, जैसे पर्सन ए है और पर्सन बी है, इसके पास सामान है वीट और इसके पास सामान है राइस। अब इन दोनों के बीच में एक्सचेंज तभी हो सकता है जब ए की जो नीड हो वो राइस की हो, बी की जो नीड हो वो वीट की हो। बी को वीट चाहिए, ए को राइस चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन फुलफिल हो जाता है तो ए बी को वीट देगा और बी ए को वीट के बदले में राइस देगा। दोनों की जरूरतें यहाँ पे क्या हो गई, फुलफिल हो गई। इस सिचुएशन में ए एंड बी आर परफेक्ट पार्टनर्स।
ए और बी यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, परफेक्ट पार्टनर्स हो रहे हैं। लेकिन नॉर्मली ऑन अ डे टू डे बेसिस इस तरह के परफेक्ट पार्टनरशिप को ढूंढना हमारे लिए आसान काम नहीं हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि ए हो और बी हो, ए के पास वीट है, बी के पास राइस है, ए की जो जरूरत है वो राइस की है, लेकिन बी को वीट नहीं चाहिए। अब चूंकि बी को वीट नहीं चाहिए और उसके पास राइस है, इसके बावजूद ए की आवश्यकता यहाँ पे पूरी नहीं हो पा रही। अब बी के पास राइस है और सी के पास मीट है। सी को राइस चाहिए, बी को मीट चाहिए। यहाँ पे इनकी आवश्यकताएं पूरी हो गई, लेकिन यहाँ पे इनकी आवश्यकता पूरी नहीं हुई। तो ये वाला जो एलिमेंट है जहां पे आपको आपका परफेक्ट पार्टनर एक गो में मिल सकता है, या फिर आपको आपके परफेक्ट पार्टनर को ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, दिस वाज वन ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम विच वी कॉल एज द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस और द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस को मैं वापस से रीइंस्टेट करी, कैसे समझना है आपको, where two people are in mutual need of each other's good। हमारा जो कोर वर्ड है यहाँ पे वो कौन सा वर्ड होगा, म्यूचुअल नीड। म्यूचुअल का मतलब होता है परस्पर। एक को दूसरे के सामान की आवश्यकता है, दूसरे को पहले के सामान की आवश्यकता है, और इस तरह के सेटअप में एक और जो पहला और दूसरा व्यक्ति है वो एक दूसरे का परफेक्ट पार्टनर हो सकता है। लेकिन ये सिचुएशन हमें बहुत आसानी से हर बार या बार बार मिल जाए, ये संभव नहीं है। दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ बार्टर इकोनॉमी विच इज प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। द सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ बार्टर इकोनॉमी वॉज स्टोर ऑफ वैल्यू। आपने ध्यान में रखना है कि हम जिस सोसाइटी की बात कर रहे हैं वो सोसाइटी कैसी सोसाइटी थी, अग्रेरियन। अग्रेरियन सोसाइटी में अधिकतर जो गुड्स होंगे वो कैसे होंगे, एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल गुड्स का एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, पोटैटोज, टमेटोज, व्हाटएवर वेजिटेबल्स। सपोज कीजिए वी टुक द एग्जाम्पल ऑफ पोटैटोज। नाउ आपको भी पता है कि पोटैटोज को हम बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। तो जिस सोसाइटी में हम रह रहे थे वो अग्रेरियन सोसाइटी थी। अग्रेरियन सोसाइटी में हमारे पास एग्रीकल्चरल गुड्स थे ज्यादा। एग्रीकल्चरल गुड्स का अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं पोटैटोज या फिर एनी ऑफ द एग्जाम्पल, बीट टमेटो, बीट वेजिटेबल्स या चावल दाल कुछ भी लेते हैं, तो उनकी भी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली कम होती है। तो इन सामानों को स्टोर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो हमें एक ऐसा ऑल्टरनेट ढूंढने की जरूरत महसूस हो रही थी जिसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताऊं, अगर आप अपने नोट को, अगर आपके पास 10 रुपए का नोट है एंड इफ यू कीप द नोट फॉर 10 years, वो नोट खराब नहीं होता है। सो दिस इज द एलिमेंट दैट वी वर लुकिंग फॉर। ये जो स्टोरेज का एलिमेंट है उसको हम ढूंढ रहे थे, जो कि हमें बार्टर इकोनॉमी में गुड्स के साथ मिलना पॉसिबल नहीं हो रहा था। स्टोर ऑफ वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम जो थी हमारी वो है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू कहने का क्या मतलब है, इसको हम सबसे पहले समझेंगे किस चीज से, एग्जाम्पल से। मेजर करने का मतलब होता है किसी भी चीज को नापना, और वैल्यू मतलब उसके मूल्य को नापना। हर वस्तु का अपना अपना एक मूल्य होता है। आप एक पेन खरीदते हो वो 5 रुपए की हो, आप एक कपड़ा खरीदते हो शर्ट, वो 200 रुपए की हो सकती है, आप एक स्कूल बैग खरीदते हो वो 500 रुपीज की हो सकती है। सो एवरी गुड दैट वी आर बाइंग हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू, और उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब एग्जाम्पल आपने ये लेना है कि सपोज आप एक पेन खरीदते हो लेक, ठीक है। अब इसमें 2 पहलू हो सकते हैं।
पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में इस लिंक पेन को अगर आप यूपी में खरीदे, झारखंड में खरीदते हो, बिहार में खरीदते हो, XYZ, मतलब किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन इन इंडिया, किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन इन इंडिया खरीदते हो, आपको एक चीज मिलती है। वो क्या मिलती है? यूनिफॉर्म प्राइस। ये लिंक पेन आप कहीं भी खरीदते हो, ये आपको कितने का मिलता है? 5 रुपीज। ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में हम देखेंगे अगर इस पेन को एक फार्मर खरीदता है, एक स्कूल किड खरीदता है, आपके चीफ मिनिस्टर खरीदते हैं, हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट खरीदते हैं, कोई भी इसको खरीदता है, वहां पे हमें क्या मिलता है? इक्वल प्राइस। ये सबके लिए कितने रुपए का होगा? 5 रुपीज। जब हम मेजर ऑफ वैल्यू की बात करते हैं तो 2 चीज जो है वो बहुत जरूरी है। पहला कि किसी ज्योग्राफिकल पर्टिकुलर एरिया में उसके प्राइस में हमें यूनिफॉर्मनेस मिले। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे वो चीज 10 रुपए की है, वहां पे वो चीज 12 रुपए की है, कहीं और वो चीज 8 रुपए की है, कहीं और वो चीज 5 रुपए की है। ऐसा होना हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए आसान नहीं होगा। आसान क्या होगा कि एक सामान एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में यूनिफॉर्म प्राइस पे मिले। दूसरा जो एलिमेंट है वो ये है कि उस सामान को चाहे कोई भी खरीद रहा हो, एक फार्मर, एक स्कूल बच्चा, या फिर एक चीफ मिनिस्टर, या फिर हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट, कौन खरीद रहा है, इससे उसके प्राइस पे कोई इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। मेजर ऑफ वैल्यू की समस्या यही थी कि बार्टर इकोनॉमी में एक आदमी 5 केजी राइस के बदले में 2 केजी वीट ले रहा था। कहां पे? विलेज X में। वही विलेज Y में 5 केजी राइस के बदले में 3 केजी वीट का एक्सचेंज हो रहा था। तुरंत आपको एक डिसयूनिफॉर्मिटी यहां पे देखने को क्या हो जा रही है? मिल जा रही है। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म मेजर ऑफ वैल्यू नहीं मिल रहा था। बार्टर इकोनॉमी में मेजर ऑफ वैल्यू की समस्या को हम कैसे समराइज करेंगे? देयर वॉज नो यूनिफॉर्म मेजर ऑफ एक्सचेंज। हमारे एक्सचेंज का जो मेजर था वो यूनिफॉर्म हमें नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम किस चीज की थी हमारे पास? डिविजिबिलिटी। द नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है विभाजन। जब आप चीजों को बांटते हो, चेंज इन द फॉर्म, आप उसको अगर एक बड़ी चीज है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हो? डिस्ट्रीब्यूट करते हो, बांटते हो। दिस इज डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो बार्टर इकोनॉमी में हमारे पास जो गुड्स थे, एग्रीकल्चरल गुड्स थे, हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स थे। अब एग्रीकल्चरल गुड्स में भी जो वेजिटेबल्स हैं या जो पोटैटोज हैं उनको आप छोटे पीसेस में करके बांट नहीं सकते हो। उनकी भी अपनी एक पर्टिकुलर शेप है जिसको आप डिफॉर्म नहीं कर सकते। डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको तो आप किसी भी सिनारियो में छोटे छोटे पीसेस में कट करके एक्सचेंज के प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इन दोनों एग्जाम्पल को लेके इस प्रॉब्लम को समझा जाए, मान लीजिए किसी के पास एक डोमेस्टिक एनिमल है, दैट इज अ काउ, और जिस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, अग्रेरियन सोसाइटी में डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करते थे। किसी के पास काउ है, इस काउ के एक्सचेंज में इसको चाहिए कितना? 50 केजी राइस। अब ऐसा संभव होना कि उस समय में किसी एक इंसान के पास 50 केजी
चावल हो, इसके लिए इस व्यक्ति को काफी मेहनत करनी होगी इस इंसान को ढूंढने के लिए। अब नॉर्मली उसे क्या मिलेगा? पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी एंड गोज ऑन एंड ऑन। किसी के पास 5 kg होगा, किसी के पास 6 kg हो सकता है, किसी के पास 10 kg हो सकता है एंड सो ऑन एंड ऑन। लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में जहां पे डिफरेंट इंडिविजुअल्स के पास इस टोटल अमाउंट का एक पर्टिकुलर पोर्शन है, इस काउ का एक्सचेंज होना कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इस काउ में हमें किस चीज की प्रॉब्लम को फेस करने की जरूरत आ रही है? प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। सो बार्टर सिस्टम में हमारे पास जो गुड्स थे वो अपने पर्टिकुलर नेचर में इस तरह के थे कि डिवाइडिंग द गुड इनटू स्मॉलर यूनिट वाज नॉट एनी ऑप्शन। इन दैट सिनेरियो हमें एक बल्क मतलब होता है जिसमें क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, हमें एक बल्क एक्सचेंजर की जरूरत होती थी जिसके पास दूसरे गुड की क्वांटिटी क्या हो? बहुत ही ज्यादा। अब दूसरा पार्ट इसका ये, अभी तो आपने काउ के ओनर के पार्ट को देखा कि एक इंसान है एक्स, उसके पास गाय है, उसको ये समस्या हो सकती है कि उसे चावल चाहिए। कितना चावल चाहिए? 50 kg चावल चाहिए। अब 50 kg चावल उसको एक इंसान के पास मिल जाए, ये उसके लिए एक समस्या है। दूसरे पहलू पे आते हैं अगर हम, इफ यू लुक ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, अगर मान लीजिए 50 kg चावल है किसी इंसान के पास विच इज वाई। अब इस 50 kg चावल के बदले में इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक गाय ही चाहिए, ये भी हमेशा पॉसिबल हो ये जरूरी नहीं है। So when we are talking about the divisibility problem in barter economy, there are two sides of the story. First, we have the problem of divisibility of particular goods like any domestic animal. Second, अगर किसी के पास हमें बल्क का एक्सचेंज मिल भी जाता है तो वहां पे वापस से उसे गाय की ही आवश्यकता हो, ये भी हमारे लिए एक समस्या हो सकती है।